Let's start with the demo then. Once again, welcome to AFCK's Technologies, and we are going to start with the demo for Advanced Excel, practical applications of Advanced Excel. Hi Chandrakant, good afternoon. Okay, so before we move further, my name is Asif Attar. I am basically from Pune itself. I'm a working professional. I have 15 plus years of experience in the same domain. Okay, and conducting the trainings as well, the corporate trainings and the trainings like this. Okay. Hi Pooja, good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. So before we move on to AFCK's Technologies introduction, I would like to know name of yours and why you want to join Excel class. So just a simple thing, you just have to tell your name, okay, and your why you want to join this Excel class. Only two things I want to know. Okay, so we'll start with offline first, and then we'll go online because few of them are yet to join. Okay, so we'll start with offline. हम लोग offline से start करेंगे and friends. So we'll start from here. Hello everyone, my name is Petra Sharma and basically I own Delhi and I went to Pune for last two years Okay. for the job purpose Okay. and I joined the investigation technologies. The reason is because Excel is a very big application and every company uses an application. It's like, what kind of work is it? It doesn't matter. Basically, we use the Excel to maintain and save all the work we have done on a company. Correct. Perfect. Thank you. Welcome, Tejpal. Yes. My name is Vishal Nigam. I'm from Pune office. Actually, I'm working from the yes, Okay. as a CPR surveyor. Our process is actually utility process, and I want to move the data analytics. Okay. So you want to switch your career to Yeah, okay in data field. Okay. All right. Yeah. So welcome. Hello everyone. My name is Reshma Kamsule. Currently I am staying in Pune. I'm working in Excel. One of the best EXL. yeah. Okay. For the last 9 years. Mm-hmm. And I completed MBA in finance. Okay. So I would like to go in MIS. So that's why Okay. So you want to switch your career into MIS and data analyst role. Okay. I believe in class. Yeah. So welcome. Yes. Hello, myself Pawan Patel. I'm working investment bank. In my daily work, I use Excel. I work in enhancement and ensure that product migration is happening in my process and understand what to do. So I will be able to work on Excel. Okay. So you want to learn Excel because there are too many migrations going on in your office, and learning Excel would help you to be there in your office and be competitive. Correct. Okay. Yes. Nitin. Okay. ओके तो क्योंकि एक्सेल का यूज ज़्यादा है अभी मार्केट में, इसके लिए हमको एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एक्सेल है ना. यस. तो वेलकम. Everyone, my name is Manish. I work in Citibank. In my profile, a lot of Excel dashboards, reports, MIS being used. So that's the reason I'm here. I want to use whatever I am going to learn here. I'm going to implement that in my profile. Okay, so you want to implement the things which you are going to learn here, you want to implement the same in your office so that it will be easier for you to save your time, make some dashboards, to put some formulas and functions to make your life easy. Okay, so yeah, welcome. good afternoon. My name is Sagar. I'm working for Principal Service and Office. So I want to more academic knowledge. Okay. All right, welcome. So you also want to change your or switch your profile to MI profile. All right.
Okay, so we'll go with online then. So basically, you want to tell your name and why you want to join Excel class. Only two reasons. Okay. So we'll go with the ascending order. What do you say, Aarti? We'll go with Yes, Aarti. Yes, yes. Aarti. Hello, my name is Aarti Rahul Kasude, and I worked in commercial operations. So I have seen that in organization, definitely we should know the MS Excel for better visualization and attractive data. So for that purpose itself, I wanted to learn the Excel. Okay, so you want to learn Excel to present data or visualize data in such a way, in presentable way, so that it will be easier for you to, showcase your data or show something new in Excel. All right. Yes, Okay. yes. So welcome, Aarti. Thank you. Yes, Asmita, you can go next. Yeah, hi, my name is Asmita. So basically, the reason behind to join the class was I have few migrations coming in, and currently I also Okay. deal with some kind of reporting. But then to explore more on Excel and also have more knowledge on visualizations, I have chose to join this course. Thank you. Okay, so again, yeah, welcome Asmita. So again, just because of migration and lot of Excel work in your organization, you want to learn Excel. Okay, all right. Chandrakant, Hello, हेलो सर, yes, yes, Chandrakant. I'm out. मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, बोलिए आप. सर मैं बेसिकली 8 साल से काम कर रहा हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल एंड जनरल लेजर में। ओके, APAR में और हो आप. मुझे एपीआर जी है, तीनों में मैंने काम, मैंने पहले एआर में काम किया, उसके बाद एपीआर में काम किया, हाँ और हाँ. अब मैं पूरा जनरल लेजर में काम करता हूँ। ओके. पर मुझे अभी थोड़ा आगे जाना है, जिससे जो रोल है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, उसमें बहुत सारे रिपोर्टिंग भी है, जैसे कि बजटिंग है, करेक्ट. कंसल्टेशन है, तो उसमें मुझे जाना है। तो मैं, मुझे लगता है कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ एक्सेल में, तो मुझे वो स्किल एनहांस करना था एडवांस, जैसे कि एक फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाते हैं, करेक्ट. तो मुझे कभी कभी कुछ गलत हुआ है तो समझता नहीं, फिर मेरा रिपोर्टिंग आगे गलत जाता है, तो उसको करेक्ट. मुझे सुधारना है। और आगे ऑफिस में अभी टैबल्यू और बीआई बना है, उसके लिए मुझे बेसिक पहला अच्छा करना है, उसके बाद मैं और बीआई करूंगा और इसके लिए। करेक्ट. सो चंद्रकांत, आप एक बैंकिंग प्रोसेस में काम कर रहे हो, APAR पे, और बहुत सारा एक्सेल पे काम कर रहे हो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी आने वाले इसमें पावर BI टैबल्यू इसका इस्तेमाल होने वाला है. तो आपको अभी आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप आगे पावर BI जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, सो यू कैन लर्न पावर BI एज वेल, और फिर आप मोर कॉम्पिटिटिव बन जाओ, राइट? और मैं एसक्यूएल थोड़े मैक्रो सीखने हैं, उसके बाद मुझे फाइनली और पाइथन प्रोग्रामिंग भी करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में लगती है। ओके, गुड. तो आपने बहुत अच्छा, मतलब एक करियर पाथ बना के रखा है. तो अभी आप एक्सेल से स्टार्ट करोगे, फिर आप VBA सीखोगे, ऑटोमेशन सीखोगे. और मैं आपको बता दूं, ऑटोमेशन इज वेरी हेल्पफुल इन बैंकिंग प्रोसेस स्पेशली, बिकॉज डूइंग रिकंसिलिएशन, वर्किंग ऑन स्टेटमेंट्स, इतना मतलब ऑटोमेशन का जरूरत पड़ता है कि आप जब ऑटोमेशन सीखोगे चंद्रकांत, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो काम आप 4-4, 5-5 घंटे लगाते हो, वो काम आप हार्डली कुछ मिनट्स में कर सकते हो. और जैसे कि उसके बाद जैसे आपके करियर पाथ में आपने बताया कि आपको पावर BI सीखना है और पाइथन सीखना है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ. और जो ये आपने आज जो शुरू किया है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. क्योंकि होता क्या है पता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, बट ऐसे अपने जितने भी लोग आज कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे, ऐसे आप लोगों ने कब सोचा होगा कि हमको ये सीखना है? और सोचते सोचते हमारा महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल निकल गया है, और आज हम फाइनली यहाँ पे पहुंचे कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए हमको सीखना ही है ना? हम लोगों ने काफी पहले से प्लान किया होगा, है ना? तो ये प्लान करना है ना, स्टडीज के मामले में ये कभी भी नहीं होता है. यू हैव टू टेक द राइट स्टेप ऑन राइट टाइम. अगर आपने सोचा कि आपको सीखना है तो सीखना है, फिर आप क्या है, दूसरे काम साइड में रखो, क्योंकि ये सीखोगे तो यही क्या होने वाला आगे, यही आपके करियर में आपको बूस्ट करने वाला है ना. अगर हम ये सोचेंगे ना बाद में करते हैं, तो आपके पीछे से कुछ और लोग सीख कर आपके ऊपर चले जाएंगे, आपके सुपरवाइजर बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, या कोई ऐसे कंपनी में जाएंगे,
और फिर जब आपका फ्रेंड का फोन आएगा ना, अरे कहाँ पे हो, मैं तो ये कंपनी में हूँ, अच्छा कितना पैकेज ऑफर किया, इतना। और फिर जब वो पैकेज भी सुन लेते हैं ना, तो हमको लगता है काश मैंने तभी ज्वाइन किया होता, जबकि मैंने इसको रेकमेंड किया कि मैंने एक्सेल का या एक कोई कोर्स करना है, और इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, एंड नाउ ही इज देयर एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी। तो ये बाद में रिग्रेट होता है, तो वो रिग्रेट नहीं हो, इसीलिए वी हैव टू टेक राइट स्टेप। तो वेलकम चंद्रकांत। थैंक यू सर। पूजा। Hello, sir. My name is Pooja Owankar. Actually, the reason behind joining this Excel class, because nowadays most of organizations are using Excel in their work. So I think if I'm learning Excel, so I can easily analyze the data, visualize the data, creating reports. So there is a lot of opportunity to grow my career. So learning Excel is helping me update the skill. So that's why. Okay, to update the skill, as you rightly said, to update the skill, but I'll I'll tell you one thing, Excel जो है ना, अभी ये सारे कंपनीज में आ नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा है, ये ऑलरेडी आ चुका है, और ये आज नहीं आया, ये काफी साल पहले आ चुका है। अगर आप 5 साल 10 साल पहले अगर जाके देखोगे ना, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेल बहुत पहले से आया है। हम लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है कि ये एक्सेल जो है, ये एक बूमिंग टूल बन गया है, और हमको ये सीखना चाहिए, क्योंकि अब इसका डिमांड बढ़ गया मार्केट में। इन एनी काइंड ऑफ जॉब, वेदर इट इज अ रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, MIS और डायरेक्टर लेवल, आप कोई भी लेवल पे जाओगे ना, तो एक्सेल इतना मैंडेटरी हो गया है कि बिना एक्सेल के जो है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिलना भी मुश्किल है। अभी बिना एक्सेल के आपको एंट्री मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक्सेल क्या है मालूम है, अभी वो ऑर्गेनाइजेशंस के रग रग में हो गया है, और बिना एक्सेल के कुछ भी काम नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल एक्सेल पे बैंकिंग में भी काम कर रहे हो, आप भले किसी SAP पे काम कर रहे हो या किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, स्टिल एक्सेल इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जो भी लोग यहाँ पे बैंकिंग में काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे ये स्टेटमेंट से एग्री करेंगे या नहीं पता नहीं, बट व्हेनेवर यू डाउनलोड एनी काइंड ऑफ डेटा, किसमें आता है? एक्सेल में आता है ना, एक्सेल में आता है। ठीक है, तो आई विल शो यू वन इंटरेस्टिंग इमेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, ठीक है, तो शुभम, यस यू कैन गो अहेड। Hello. यस शुभम। Yeah, hello, sir. Hello, everyone. Myself, Shubham Sagar. I'm working as a business analyst for the past 2 years. Okay. And the main reason for me to join this course is to get comfortable with complex formula creation. Okay. Because I'm working as a business analyst already, but I'm in financial forecasting. Okay. So in that case, we need to forecast the spend over a period of time. So in that, I need help with complex formulas. All right. So you want to join Excel course because you want to learn complex formulas. So Shubham, one question for you. You're already Yes. working as a business analyst. Okay. Yes. So this is in terms of understanding the business, or in terms of governance of business. In terms of governance of business, because So you we, yeah, yes, yes, So sir. you must be already doing some reportings and all. Yeah, Because- yeah, I'm because comfortable managing- with Excel, but for complex formulas, for deriving Logics, data, logical yes, things. Correct. yes, for that purpose, I'm looking for this course. Okay. All right. So definitely, Shubham, this class will help you to understand more complex functions, how to create complex functions from scratch and from easy way. Okay. And Yes. definitely, if you're working in as business analyst, so managing, or managing the governance of any process is again a tough job. Yes, And sir. managing the whole data, presenting the data, manipulating with data, doing data mining, each and everything is involved in this. And definitely you must learn such kind of functions, or the advanced functions that will help you to boom in your career. Yes, So sir. definitely welcome, Shubham. Thank you, sir. Yeah. Suvidha. Yeah. Hello, sir. Hello, all. Hi.
My name is Suvidha Renugdas. Actually, I have recently joined healthcare industry where Excel is used for daily activity. So to Okay. get more familiarity with Excel and for data manipulation and evaluation, I need to learn Excel. Okay. So you're working into healthcare industry. Yes, Okay, and Excel is required. And for yes, which healthcare you're working for? It is for India or out of India? international US. USA. Okay. So you're getting more inpatient, outpatient claims and such kind of claims Um, you're getting, right? no, it's not about claim. It's for a billing purpose. Billing purpose. So you are into adjudication. Yes, Okay. So for billing purpose, you are using Excel to yes, calculate the billing amounts and whatever service lines you receive, to do some calculations if there are any discounts, how to do yes, that. yes, So for yes, that Excel is required. Definitely Excel is required for that, because applications are built in such a way that you won't get each and everything in system. Okay, so we need yes, Excel to do those calculations and then move further, or what we can say, do the billing part in the adjudication. Yes, I can understand that. yes, So yes. welcome, Suida. So I think Yeah, we are thank done you. with the introduction of all. So let me take you to this screen. Yeah. So we are here to AFCKS Technologies. AFCKS is nothing but achieving freedom by creativity and knowledge sharing. So reading this statement, what do you think? ये देखकर आपको क्या लगता है? What is our motto? What is our motto of taking this or conducting these classes? So any individual achieving freedom by creativity and knowledge sharing. तो हम लोग जो भी सीखने वाले हैं, जो भी अचीव करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? अपने खुद के फ्रीडम से करेंगे एंड देन वी विल मेक सम क्रिएटिविटी इन इट. लेकिन उसी के साथ साथ क्या है, अपना नॉलेज शेयर भी करना है हमको. अगर हम अपना नॉलेज शेयर करेंगे 10 लोगों में और वो 10 लोग आगे जाके और अपना नॉलेज शेयर करेंगे, तो ये क्या होने वाला है, अपना नॉलेज बढ़ने वाला है. अब देखो एक चीज, इफ यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग, अगर आप कोई प्रोसेस में काम कर रहे हो, ठीक है, और आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोल के काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो नॉलेज रहेगा ना, वो नॉलेज पे कुछ लिमिटेशंस रहेंगे, बट इफ यू गेट अ चांस टू ट्रेन समवन, कोई नया टीम आ रहा है 10 लोगों का, और 10 लोगों की टीम को आप ट्रेन कर रहे हो. हाय नंद किशोर. 10 लोगों के टीम को आप ट्रेन कर रहे हो. जब आप ट्रेन करोगे और आप ट्रेनिंग के बाद वाला आपका नॉलेज देखोगे, तो उसमें डिफरेंस लगेगा या नहीं लगेगा? आपको क्या डिफरेंस लगेगा? क्योंकि जब आप ट्रेन करोगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपको ऐसी ऐसी चीजें भी मालूम गिरेगी जो आपको नॉर्मल जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो नहीं पता है. क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग में 10 लोग आएंगे तो आपको क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपके पास उसका आंसर नहीं रहेगा अगर, तो आपका क्यूरियोसिटी क्या रहेगा? उसको जाके ढूंढने की. अदरवाइज अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं नॉर्मल, और आपके पास कोई एक केस आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? एक क्वेरी रेज कर दोगे, क्वेरी का रिजोल्यूशन ले लोगे और उसको केस को खत्म कर दोगे. दैट्स इट. उसके बाद आपको वो सीखना नहीं है. लेकिन अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करोगे? आप उसको रिजॉल्व करने के पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. उसी के बाद आप क्या करोगे? आंसर कर पाओगे सामने, है ना. और जब आप आंसर करोगे तो वो जो रिसर्च किया हुआ जो टाइम है ना, वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके पास फिट हो जाएगा. मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात, है ना. तो हमारा मोटो यही है कि जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम ऐसा वैल्यूएबल ट्रेनिंग दे कि आप यहाँ से जाने के बाद ये जो भी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे, इसी को हूबहू इम्प्लीमेंट करो. हम लोग ऐसे डेटा सेट्स लेंगे. फ्रेंड्स एक मिनट देना मुझे, आई थिंक कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है. लेट मी चेक. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया.
ओके, तो हमारा मोटो यही है कि हम लोग जो भी यहाँ पे आपको सिखाएंगे, यू शुड इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ही तो आपका सीख के फायदा होगा। और जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो फायदा किसका होगा? कंपनी का होगा या आपका होगा? दोनों का होगा, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा फायदा किसका है इसमें? आपका है। क्यों? क्योंकि जब आप आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करोगे, जब आप सीखोगे, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करोगे, तो आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे क्या? सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपका वैल्यू कब तक रहेगा? जब तक आप सेम सैलरी में वो दे रहे हो तभी तक, है ना? या तो आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट है। लेकिन जब आप स्विच करते हो, जैसे अभी करियर स्विच की कुछ लोगों ने बात की, ठीक है, अब आप ऑपरेशंस में काम करो, जब आप करियर स्विच करोगे, ठीक है, तो वहां पे ये सारे रिक्वायरमेंट्स आने वाले आपको। तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर आपने किया, तो ही तो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट? अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर दिया आपने, एंड यू गो फ्रॉम हियर, और आपने क्या किया? उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो नॉलेज खत्म होगा धीरे धीरे करके, है ना? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अप एंड रनिंग रहना पड़ेगा, है ना? तो वो कैसे रहेगा? जो भी हम सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? तो AFCKS जो है ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, ये रजा सर ने स्टार्ट किया था, और इसके पीछे मोटो यही था कि सबको एक बेस्ट नॉलेज शेयरिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं अभी। अभी देखो यहाँ पे मैंने ब्लैंक शीट ओपन किया है। सो व्हाई आई हैव ओपन दिस ब्लैंक शीट? एनी आइडिया? हम लोगों ने ब्लैंक शीट क्यों ओपन किया यहाँ पे? अभी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऐसे कुछ नहीं है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सेल एंड एवरीथिंग वी विल नोट डाउन हियर। जो भी हम डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओके, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस, let me tell you, this demo session is recorded session, only this session. Okay, after demo session from next week when we will start live classes, वहां पे अपने recording नहीं होने वाले, ठीक है? Am I clear on this? Yes. जो अपने रेगुलर क्लासेस होते हैं उसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं होता है। हम लोग ये डेमो सेशन रिकॉर्ड क्यों करते हैं? डेमो सेशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्योंकि देखो, अभी बहुत से एनरोलमेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनरोल किया है, बट ड्यू टू सम ऑफिस वर्क दे आर नॉट एबल टू कम हियर और अटेंड दिस। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम लोग ये क्लास में क्या सीखेंगे, अपना कंटेंट क्या रहेगा, क्लास के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, अपना सिखाने का पैटर्न कैसा है, ये उनको कैसे समझ में आएगा? तो ये रिकॉर्डिंग देखकर समझ में आएगा। तो जैसे ही अपना ये डेमो क्लास खत्म होगा, वी विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। तो इससे होगा क्या? जितने लोगों ने एनरोल किया, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, उनको एक लिंक जाएगा ये एनरोलमेंट का, ठीक है? ये वीडियो अपलोड किया हुआ, एंड देन दे कैन इजीली गो थ्रू द वीडियो एंड दे कैन टेक द डिसीजन। ओनली फॉर दैट पर्पस वी आर रिकॉर्डिंग द डेमो सेशन। लेकिन हम लोग रेगुलर क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करते। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस रिकॉर्डिंग बिट? किसी को ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होता है? फिर ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया है? कोई तो ऐसा सोचा होगा कि अरे फिर डेमो क्लास रिकॉर्ड करते तो रेगुलर क्लास भी रिकॉर्ड कर दो, ताकि हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी के दिन घूमने जाएंगे और घूम के आने के बाद सोचेंगे फिर रिकॉर्डिंग देखना है या नहीं देखना है। ध्यान नहीं देंगे लोग। तो what is the reason for not recording the live sessions? So one reason is people will take it for granted. क्या? चलो रिकॉर्डिंग आने वाला है, हम लोग देख लेंगे, है ना? ये चीज आपके मन में आएगी ना, तो इससे होगा क्या? अटेंडेंस पे इम्पैक्ट होगा। और अटेंडेंस पे इम्पैक्ट का मतलब क्या? अटेंडेंस पे इम्पैक्ट का मतलब क्या? जो वैल्यूएबल चीज आप सीखने वाले हो, ये आप नहीं सीख पाओगे। कैसे? आप तो बोलोगे मैं तो रिकॉर्डिंग देख के सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, है ना? लेकिन अभी आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो क्लास, कुछ ऑफलाइन में है, कुछ ऑनलाइन में है। अब आपको अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय कुछ डाउट आया, तो आप किसको पूछ सकते हो? मुझे पूछ सकते हो, और मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मान लो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया, और आप अपना ट्रिप एंजॉय करके आ गए, और फिर आपका मन बन गया चलो हम लोग देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है? और आप बैठ गए रिकॉर्डिंग करने।
फिर जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो और साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो क्या रहा है पता है, वो फंक्शन जो मैंने यहाँ पे सिखाया, जो चीज मैंने यहाँ पे सिखाई, वो आपके सिस्टम पे चल ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं चल रहा है? तो हो सकता है कुछ टाइपो एरर है, हो सकता है कुछ एक्सेल का प्रॉब्लम है, XYZ रीजन से आपका नहीं चल रहा है। आप तो बोलोगे मैंने तो सेम किया है, जो यहाँ पे बता रहे हैं वही कर रहा हूं मैं, फिर भी नहीं चल रहा है। अब आप बताओ, अब आप किससे क्वेश्चन पूछोगे? किससे पूछोगे आप क्वेश्चन? फिर आप क्या करोगे? अपने पास एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, गूगल, है ना? फिर आप गूगल सर्च करोगे। फिर गूगल सर्च करने के बाद आपको कितने आंसर मिलेंगे? एक लिस्ट मिल जाएगा आंसर्स का। फिर आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सही आंसर किसमें है ना? सही आंसर सर्च करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया? एक लिंक ओपन कर लिया, ठीक है? जो लिंक आपने ओपन किया उसमें आपको कितना आंसर मिला? 50% आंसर मिल गया। आपने ट्राई किया और 50% सक्सेस मिल गया आपको। अब 50% अभी भी बाकी है, तो जो 50% बाकी है फिर उसके लिए सर्च करो। फिर आप सोचोगे अरे मैंने वो सर्च करके देखा था तो नहीं मिला था, अब ये सर्च करके देखता हूं। ऐसा करते करते आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे, है ना? तो ये होता है कि जब आप मेंटरशिप में कुछ चीज सीखते हो ना, तो ये क्या करता है? आपका टाइम सेव करता है ना? अगर आप खुद से सीखने जाओगे या जैसे वीडियोस अपलोड करने के बाद देखने जाओगे, तो इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम टू लर्न एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना? लेकिन यही अगर आप किसी मेंटरशिप में सीखोगे तो क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। जो चीज आप 4 महीने में सीखने वाले हो, आप 1 महीने में सीख जाओगे, है ना? तो ये चीज है, ठीक है? तो एम आई क्लियर ऑन दिस रिकॉर्डिंग पार्ट? क्योंकि होता क्या है पता है, अपना डेमो सेशन हो गया, रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया डेमो का, उसके बाद फिर से मुझे कॉल आता है और फिर ये क्वेश्चन पूछते कि हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं क्या? ठीक है, तो इसीलिए आई एम गिविंग मोर स्ट्रेस ऑन दिस कि हम लोग सिर्फ डेमो सेशन रिकॉर्ड करेंगे एंड अदर सेशंस विच आर गोइंग टू बी लाइव सेशंस वो अपने रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओके, अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन से क्लास के लिए आए हैं? एडवांस एक्सेल के क्लास के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दे क्या? वी आर हियर फॉर एडवांस एक्सेल क्लासेस। ओके, ये मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अब कितने लोगों को लगता है कि हम लोग एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, बेसिक एक्सेल सीखने वाले या और कुछ सीखने वाले हैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक टू एडवांस। एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोल दो, बिकॉज दिस इज इंटरेक्टिव सेशन और अपना इसके बाद भी जो क्लास होगा वो इंटरेक्टिव होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगा आप लोग म्यूट पे हो और मुझे बोल के खत्म करना है, ऐसा नहीं है। तो बेसिक और एडवांस दोनों। अच्छा, तो वन बाय वन अभी ऑनलाइन से एक क्या बोल रहे हैं, बेसिक और एडवांस दोनों सीखने वाले हैं हम। अच्छा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेंशन हियर एज बेसिक एंड एडवांस बोथ, ठीक है? अच्छा, तो मतलब कितने लोगों को लगता है कि बेसिक और एडवांस हम सीखने वाले हैं इसमें? सभी को लगता है? अच्छा, बेसिक एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? एडवांस एक्सेल में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज यूज करते हैं या पिवोटिंग। वन बाय वन, एक मिनट। हाँ, what is the difference between basic and advanced excel? अच्छा, ऑफलाइन से कोई जाना चाहेगा? एक ऑनलाइन से आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ऑफलाइन से what is the difference? अच्छा, let me tell you one thing, जो लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, if you have any question आप तभी अनम्यूट करना और आपका क्वेश्चन पूछना या आंसर करना। अदर टाइम यू कैन म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि होता क्या है, आपके जो बैकग्राउंड से जो म्यूजिक आता है ना, इससे अपने क्लास में सभी को क्या होता है, क्लियरिटी नहीं मिलता है या क्लियरली सुनने नहीं आता है। ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, पूजा एक मिनट मैं आपका आंसर सुन लेता हूँ, पहले ऑफलाइन से एक आंसर सुनते हैं। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल? ओके, okay,
Okay, so you are telling in basic Excel we are going to learn basic things like taskbar, then uh, what we can say predefined things, right? And in advance we are going to learn dashboard, then complex functions, and what else you said? Okay, MIS reporting. Okay, so MIS reporting. Okay, anyone from online now? Online से Macros कौन also आंसर we करेगा? can learn into advance. Okay, so Pivot table. in advance we are going to learn pivot table. Then you are telling macros. Yes. Okay, so I'll take your word for now, but I'll come to this point. Any other suggestions or any other point on this? Yes, Chandrakant. बेसिक में सर मतलब बेसिक एक्सेल में तो सारी चीजें होती है, जैसे कि वीलुकअप, एचलुकअप, सम, इफ, सॉरी सम, सब्सट्रैक्शन, Okay. मल्टीप्लिकेशन, ये सारा आता है बेसिक में। और All एडवांस में right. क्या होता है ना, जैसे कि वीलुकअप है, तो वीलुकअप में हमें और भी 2-3 कंडीशन देनी है, तो हमें एक फॉर्मूला में 2-3 फॉर्मूले अलग ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि Okay. वो एडवांस लेवल होता है। Okay. So to be very precise and exact answer from Chandrakant. Hi, Lakshman. Okay. So very well said, Chandrakant. So whatever functions are there, like VLOOKUP, HLOOKUP, then aggregate functions, Index match. aggregate functions, which is like sum, count, SUMIF, COUNTIF, min, max, aggregate functions. All these are aggregate functions. Then index, match, all these functions will come under basic Excel. Under basic Excel. But when you use these functions individually, and these are predefined functions created right by Microsoft, ये क्या है, बना के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, अगर VLOOKUP यूज करना है तो आप इक्वल टू से स्टार्ट करो, VLOOKUP डाल दो, इसका जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, जो सिंटेक्स यहाँ पे दिए, ये डाल दो एंड देन डन। सो दिस इज समथिंग बेसिक एक्सेल। बट आपको एक्सेल ने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है क्या जो रेडिली अवेलेबल है, कि मान लो आपको किसी डेटा पे काम करना है एंड देन यू रिक्वायर्ड VLOOKUP in it, you required VLOOKUP function in it, then again you required filter function in it, then you required some more functions like this in it, कुछ भी, मतलब ये जितने फंक्शंस आपने यहाँ पे देखे ना, ये सारे फंक्शंस आपको क्या करने हैं, लॉजिकली इसको सबको जोड़ना है और एक आंसर डिराइव करना है। तो ये इजीली एक्सेल में अवेलेबल है क्या? ये एक्सेल में अवेलेबल नहीं है इजीली। यू हैव टू बिल्ड दैट लॉजिक कि VLOOKUP में क्या डालेंगे हम, अच्छा हम लोग VLOOKUP में सम डालते हैं तो अपना ये आंसर डिराइव होगा। अच्छा हम क्या करते हैं, फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन में हम नॉट डाल देंगे, उसके अंदर अगर हम ये और एक फंक्शन डाल देंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग इट, even though that functions are there individually, but together mixing all functions, we are creating one formula out of it, we are deriving some complex answer out of it, right? तो ये जो सारी चीजें हैं ये किस में जाती है, एडवांस एक्सेल में। सो नथिंग डिफिकल्ट, बेसिक है, जो अपने प्री डिफाइंड जो फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं जिसको हम इंडिविजुअली यूज करने वाले हैं, ऑल दोज थिंग्स विल कम इन बेसिक एक्सेल। ठीक है, एडवांस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगी चीजें, मल्टीपल फंक्शंस को जोड़ो, अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस जोड़ो लॉजिकली, लॉजिक्स के हिसाब से, और फिर आंसर डिराइव करो। जब हम मल्टीपल चीजें करेंगे एक साथ तो वो एडवांस एक्सेल में जाएगा। सिंपल है, क्लियर सो फार? इसमें कुछ डाउट है? ओके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हम लोग सीखने वाले क्या हैं,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपने जब एनरोल किया था, जब आपने एनरोल किया था, तो आपने एनरोल करते समय कोर्स का नाम क्या देखा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, है ना? तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ और ही है, हम लोग तो बेसिक एक्सेल भी नहीं है और एडवांस एक्सेल भी नहीं सीख रहे। अब ये क्या है नया? व्हाट डू यू थिंक, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल क्या होगा? Why we have given this name, practical applications of advanced Excel from offline? थोड़ा जोर से। Apply it, practically implement it. Okay. Any other thought on this? हम सीखेंगे उसको हम किस तरह से और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। Okay. Anyone from online? Anyone from online? डेटा से इंसाइट निकालना which is required by the business, by the company. डेटा से इंसाइट निकालना बाय द कंपनी। ओके, फेयर पॉइंट, आपने सभी ने सही आंसर किया। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल ये जो नाम दिया है ना, ये नाम क्यों दिया है पता है? अब देखो हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सर आप सिटी बैंक में हो, राइट, यू आर वर्किंग इनटू फाइनेंस डिपार्टमेंट, और बहुत से लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग एडमिन में रहेंगे, कुछ लोग एचआर में रहेंगे, है ना। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे जब आप ऑफिस जाते हो तो आपके सामने कुछ चैलेंज आता होगा एक्सेल पे, अगर आप काम कर रहे हो, है ना। प्रैक्टिकली आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो क्या? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ कंटेंट इन सच अ वे कि आप लोगों के प्रैक्टिकली लाइफ में, डेली लाइफ में आपके जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को हमने इकट्ठा किया है और उसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल में डाल दिया है। तो इससे क्या सीखने मिलेगा फिर हमको? तो मान लो हमने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं यहाँ पे, वो एग्जाम्पल आप सीख गए, तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप काम करते हो उसको आप क्या कर पाओगे? रिलेट कर पाओगे, और जब आप रिलेट कर पाओगे तभी तो आप जाके इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना। अगर आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे क्या? तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे सीखेंगे उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपके ऑफिस में ऐसा कोई काम है क्या? हो सकता है जो डेली आप कर रहे हो वो तो है ही, बट ऐसे बहुत से काम हैं जो आपके डेली इसके अंदर आपको नहीं पता। जब आप आपके मैनेजर से बात करोगे तो आपके मैनेजर के पास भी कुछ एक सेट ऑफ प्रोसेस रहेगा, सेट ऑफ रिपोर्ट्स रहेंगे जिसके ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जब आप देखोगे तो आप उनको बता सकोगे, बेटर वे बता सकोगे, अरे यू आर डूइंग दिस, ओके, आई विल शो यू समथिंग इजियर वे टू डू दिस, आई विल शो यू सम फंक्शन, आई विल शो यू सम टिप्स। तो जब आप आपके मैनेजर को ऐसा बताओगे तो आपको क्या मिलेगा? शाबाशी, है ना। अरे शाबाशी, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, है ना। तो हमको क्या मिलेगा? डेफिनेटली उसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप ऐसे ही उसको इंक्रीज करते जाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या पता है? वो सारा काम किसके पास आएगा? आप बोलोगे अरे तो आप सिखा रहे हो क्या, हमारा काम बढ़ा रहे हो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जब आपका मैनेजर आपके पास जब कोई काम दे रहा है तो आपका काम का प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, आपको नया कुछ सीखने मिल रहा है। आपके प्रोफाइल में क्या हो रहा है? आपके प्रोफाइल में चीजें ऐड होती जा रही है ना। मानते हो ना ये बात को? क्या ऐसा कोई सोचता है कि आपका काम बढ़ गया तो आपका भी जो फ्री टाइम है वो वेस्ट हो गया, है ना। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, हमारा एक ही मोटो है कि चीजों को सीखो, इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि अरे यार बस अभी इतना कर लिया, अभी 2 घंटा मिलता है, अभी 2 घंटे में भी काम करना पड़ेगा, तो वो बंदा यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। वी आर हियर बिकॉज वी नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट 2 आवर्स। वो 2 घंटे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेशन का काम करके 2 घंटा बच रहा है तो हम अपने ऑफिस में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम लोग
अपने पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसको रिलेट कर सके, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये क्लियर है अभी सभी को ये पॉइंट? सो व्हाट इज बेसिक एक्सेल, व्हाट इज एडवांस एक्सेल, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू learn here in practical applications of advanced excel. So I'll mention it here. Daily tasks or day to day work in our office, इसको ऐसा मेंशन कर, ठीक है। ये सेंस बन रहा है ना इतना डालने पे? ओके, ठीक है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना ये वाला पार्ट, हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया, बेसिक एक्सेल का और एडवांस एक्सेल का डिफरेंस क्या है ये देख लिया हमने। क्या होता है एक्स लुकअप? हाँ, एक्स लुकअप ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एक्स लुकअप एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ऐसे ना बहुत सारे फंक्शंस है, देयर आर मोर देन 400 फंक्शंस, ठीक है, देयर आर मोर देन 400 फंक्शंस। तो आप लोगों को क्या लगता है 400 फंक्शंस सीखेंगे हम? आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि आपके ऑफिस यूज में हार्डली 50 फंक्शंस भी काम नहीं आते होंगे। 50 फंक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 फंक्शंस। तो जैसे मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल में हमने क्या किया है, डेली जो भी अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीजें कोलेक्ट किए हैं और उसके एग्जांपल्स बना के हमने यहाँ पे ये कोर्स कंटेंट में डाल दिया है ना। तो हम लोग ऐसी एग्जांपल्स सीखेंगे जो अपने को यूजफुल है ना। अगर आपको दिल्ली जाना ही नहीं है, फिर से पूना में आप आ गए हो, पूना में रह गए हो, आप दिल्ली जाना ही नहीं है, तो किसी को दिल्ली का पता पूछोगे क्यों अभी वापस, या दिल्ली की ट्रेन का आप क्यों पूछोगे इन्फॉर्मेशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शन सीखने वाले हैं वो 110% आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले फंक्शन सीखने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अपने डेली लाइफ में काम ही नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ, बट पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स से कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई एचआर में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि 1% चांसेस कि आप अगर फाइनेंस में हो और जो एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हो जो यहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं लिया है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। जो भी फंक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कवर कर रहे हैं, वो सभी आप या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई यूज कर रहा होगा, या तो आप यूज करोगे तो उसका बेनिफिट देखोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरा फ्रेंड तो ये फंक्शन यूज करता था और ये अपने एग्जाम्पल्स में नहीं है। ऐसा चांसेस बहुत कम है। और अगर ऐसा चांस अगर होता है, सो व्हाट वी डू, वी implement such kind of functions or such kind of examples and we add that example in our syllabus। हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेबस में ऐड करते हैं। तो मान लो हमारे पास लेट्स से आज की टाइमिंग में 200 से 250 तक एग्जाम्पल है, तो पॉसिबिलिटी है ना कुछ आउटडेटेड हो जाएंगे, कुछ नए आएंगे। तो ऐसे तो नहीं है जो 2010 में स्टार्ट किया था जो कंटेंट वो सेम कंटेंट चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर एक कोर्स में कुछ नई चीज आई ऐड कर दो, कुछ आउटडेटेड चीज हो गई निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोर्स कंटेंट चलता है। Am I clear on this? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि why should we learn Excel। तो हमारे पास इसके बहुत सारे आंसर्स है। कुछ आंसर्स हमको हमारे इंट्रोडक्शन में ही मिल गए थे कि हमको एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमको एक्सेल क्यों सीखना है? आप लोगों के जो भी माइंड में थॉट आ रहा है आप बोल दो, आप बोल दो बस मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया और मैंने भी ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है, मतलब कैसा है, अभी हम लोग प्रोफेशनल्स है, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा नॉर्मली क्या होता है पता है, मतलब अरे मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया, मैं तो घर में बैठा था, मेरे फ्रेंड ने बोला चल तो मैं भी चल दिया, है ना। तो वो 3 इडियट्स में पता है ना, कोई और ट्रेन में चढ़ गया है, वो एक डायलॉग है वैसा वाला। तो बस वो जो ट्रेन में चल रहा है हमको भी चलना है।
लेकिन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप वो बोल दो कि आपको एक्सेल सीखना क्यों है। जैसे किसी ने बताया था, क्या बताया था, टू स्विच करियर, है ना, टू स्विच करियर इनटू MIS। ठीक है, तो हम जो भी पॉइंट्स आप बोलोगे ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट मेंशन कर देते हैं, स्विच करियर। ठीक है, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं एक्सेल सीखने का, और क्या रीजंस हो सकता है? better visualization. करेक्ट, टू सेव टाइम, आप सेव टाइम बोलना चाह रहे हो। ठीक है, टू सेव टाइम, ऑनलाइन के पास मैं आ रहा हूं, आप बोल रहे हो टू शो बेटर विजुअलाइजेशन। ओके, टू प्रेजेंट डेटा इन बेटर विजुअल्स। और क्या होगा, जब आप टाइम सेव कर रहे हो, जब आप टाइम सेव कर रहे हो तो क्या सेव हो रहा है? Money. Money, Efforts. exactly, efforts. You are saving your efforts. Correct. Exactly. तो आपने टाइम सेव किया, टाइम सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एफर्ट सेव हो गया। तो और जहां पे डेटा विजुअलाइजेशन की बात आती है, ठीक है, तो जब आप डेटा विजुअलाइजेशन अगर अच्छे से कर पाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, योर Growth नेम, होगी। योर नेम, आपका नाम बन जाएगा ना, आपका नाम बन जाएगा, है ना। यहाँ पे योर नेम डालने से क्या डाल सकते हैं हम लोग, यू विल बिकम फेमस, यू विल बिकम फेमस, है ना, आप फेमस बन जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। अभी बहुत से हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे ना कि अपने स्टूडेंट्स यहाँ से सीखते हैं और मैनेजर कुछ काम कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, ठीक है, अरे आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। तो मैनेजर को क्या मिल गया, मैनेजर को एक ऐसा बंदा मिल गया जो उसका काम करके देगा, है ना। तो उसके बाद जो भी काम आएगा ना एक्सेल पे, मैनेजर क्या करता है, अरे कम हियर, आई हैव समथिंग फॉर यू, थोड़ा सा ये बताना ये कैसे करते हैं। अब वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है कि वो डेटा आपको दे दे, वो उसी के डेस्क पे काम करके लेगा मैनेजर, है ना। फिर वो एक बार होगा, दो बार होगा, फिर ये जब रिपीट होगा और मैनेजर को कॉन्फिडेंस आएगा, अरे नहीं बंदे को तो बहुत कुछ आ रहा है, फिर क्या होगा, मैनेजर डेटा दे देगा आपको, बोलेगा ये करके रखना, मैं एक चाय पी के आता हूँ, है ना। सो यू विल हैव द डेटा विथ यू। तो आप बोलोगे कि मैं काम ऑपरेशन में कर रहा हूँ, मेरे पास तो डेटा है ही नहीं काम करने के लिए, तो फिर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनेजर को आपके लर्निंग्स को, जो भी आप सीख रहे हो उसको बता करके आप मैनेजर से कुछ ऐसा काम ले सकते हो जिसके ऊपर आप काम कर सको। तो आपके पास डेटा आ गया, अब जब आपके पास डेटा आ गया तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, फिर बहुत सी चीजें बना के बता सकते हो। अब आपके मैनेजर का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बना के रखा है मैनेजर ने यहाँ पे, ठीक है, और मैनेजर क्या कर रहा है, हमारा हर बार एक ही फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, अपने लीडरशिप टीम को एक ही फॉर्मेट में डेटा दे रहा है। जब आपके पास आ गया तो आपने क्या किया, कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, और ये डेटा कैसे बन गया, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे विजुअल्स बन गए, और डेटा ऐसे बन गया कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया आपने, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके क्लिक करो, नीचे डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स डाल दी, तो जहां जहां पे जो आउटलायर है वो रेड हो रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आपका डेटा है मैनेजर ने बनाया हुआ, वो नॉर्मल डेटा है और आपने उसको चेंज कर दिया, उसमें काफी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल दी, कुछ डेटा वैलिडेशंस डाल दिए, एंड नाउ द डेटा हैज बिकम वेरी सॉलिड। तो मैनेजर को आप बताओ कि देखो, जाओ आप लीडरशिप के सामने, ये टीम का है, जैसे एक टीम में मल्टीपल एलओबीज है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, जिनको अगर एक्सेल का ज्यादा नॉलेज है नहीं लेकिन डेटा प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये एक एलओबी का काम हो गया, ये दूसरे एलओबी का काम हो गया, ये तीसरे एलओबी का काम हो गया, तो क्या करते हैं, एक शीट में 10 एलओबी है तो 10 डेटा के टेबल बना देंगे, 10 टेबल बना देंगे, और वो 10 टेबल को एक एक करके प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप इमेजिन करो, आपने एक ही टेबल बनाया है, यू हैव क्रिएटेड ओनली वन टेबल, and with the help of drop down, you are just changing the LOB name
एंड यू आर गेटिंग द नेम्स ओवर हियर, यू आर गेटिंग द डेटा ओवर हियर, तो कैसे रहेगा? एक ही स्क्रीन पे एक ही टेबल में 10 एलओपी का डेटा बता सकते हो आप, तो प्रेजेंटेबल रहेगा ना। तो आपका मैनेजर जब ऐसी चीजें देखेगा तो ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड ही विल बी मोर आपके ऊपर उसका बहुत भरोसा बैठ जाएगा, और फिर वो आपको काम, उनका जो भी काम रहेगा वो दे सकता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन मूव और स्विच योर करियर। आप ऑपरेशन से एमआईएस में जाते हो। माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई एम फ्रॉम ऑपरेशंस बैकग्राउंड। In my 15 plus experience, I have worked more than 5 years in the operations, and then slowly and gradually I have moved into MI role, then data analyst, then analytics, like this. ठीक है? And I am plain BCom graduate. तो कोई ऐसा मत सोचना कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो आपको लैंग्वेजेस आने चाहिए या आपने कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन कैन बिकम डेटा एनालिस्ट नाउ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है, तो भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। जस्ट द थिंग इज यू वांट अ प्रॉपर ट्रेनिंग, जो अपने डे टू डे लाइफ में लगता है वो आपको आना चाहिए, और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ लैंग्वेजेस आने चाहिए, प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, डेफिनेटली टू अचीव अ डेटा साइंस रोल यू हैव टू गो थ्रू सच कोर्सेज। जैसे चंद्रकांत ने एक ये बताया था कि उनका करियर पाथ क्या है ना, उन्होंने क्या बताया था, उनका करियर पाथ क्या है ये बताया था कि उनको करना है एक्सेल क्लास, फिर यहाँ से वो स्विच करेंगे और फिर वो VBA सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो पावर BI सीखेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन अ फ्लो, इन अ पाथ टू मूव ऑन टू द डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट रोल। अब इसमें भी कैसे है, डेटा एनालिस्ट आप बन गए, उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग का भी एक रोल आ गया है। तो अगर आपके रोल के आगे इंजीनियर लग गया, डेटा इंजीनियर, तो आप बोलोगे, अरे आपके फ्रेंड सर्कल में बोलेगा, अरे ये बंदा इंजीनियर है तो इसने इंजीनियरिंग किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अ प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट कैन बिकम अ डेटा इंजीनियर, ठीक है। डेटा इंजीनियर का काम क्या है? डेटा इंजीनियर का काम है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच का जो रोल है वो काम करना है डेटा इंजीनियर को। जो पूरा डेटा क्लेंजिंग, डेटा ETL प्रोसेस जो पूरा है, मॉडलिंग करना है, ये सारा काम डेटा इंजीनियरिंग के पास होता है, ठीक है। तो ये सब सुनने में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इंजीनियर, डेटा इंजीनियर है क्या, अरे फिर मैं नहीं बन पाऊंगा, ऐसा नहीं है। एनीवन कैन बिकम डेटा इंजीनियर। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो तो यू कैन बिकम डेटा इंजीनियर एज वेल, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? वाई शुड वी लर्न एक्सेल, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे प्लानिंग टू स्विच करियर किया, सेव टाइम किया, डेटा विजुअल्स किया, सेव एफर्ट्स किया, फिर फेमस होने के लिए, प्रेजेंट डेटा करने के लिए, डेटा प्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने वो मेंशन किया। और क्या? Big data and dynamic data handling capability. वन बाय वन, आई एम नंदकिशोर, 1 मिनट, हाँ, एक ऑफलाइन से ले लेते फिर मैं आपको पूछता हूँ। हाँ, करेक्ट। तो ये तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, सेव टाइम। करेक्ट, हमने ये भी डाल दिया यहाँ पे, टू बिकम फेमस, है ना। हाँ, नंद कुमार आप कुछ बोल रहे हो? नंदकिशोर, सॉरी, नंदकिशोर आप कुछ बोल रहे हो? Yes. Big data handling and dynamic data handling within a less time. ओके, चलो, तो ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बिग डेटा हैंडलिंग, ठीक है, बिग डेटा हैंडलिंग। तो बेसिकली ये बिग डेटा हैंडलिंग के अंदर ये सारी चीजें आएंगी कि जब हम डेटा पे काम करेंगे तो हम अपना सेव करेंगे टाइम। बट देन बिग डेटा हैंडलिंग और क्या है? दिस इज वेरी इजी टू लर्न एप्लीकेशन। ये क्या है? इजी टू लर्न एप्लीकेशन। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये क्या है? दिस इज वेरी इजी टू लर्न एप्लीकेशन। और क्या है? दिस इज यूनिवर्सली यूज्ड एप्लीकेशन। यूनिवर्सली
यूज्ड एप्लीकेशन। अब मैं जब यूनिवर्सली यूज्ड एप्लीकेशन बोल रहा हूं तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? वेदर यू गो इन एनी डोमेन यू विल फाइंड एक्सेल। अभी सादा एग्जांपल अगर दूं कि सोसाइटी, अपना हम लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं सोसाइटी मेंटेन अगर करना है ना, तो वो सोसाइटी मेंटेन करने के लिए जो डेटा मेंटेन करते हैं वो भी एक्सेल में करते हैं। पहले रजिस्टर होते थे ना, उसके ऊपर लिखते थे अच्छा यानी मेंटेनेंस दिला, त्याने नहीं दिला, है ना, होता था ना ऐसा। अभी क्या है, वो भी एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं क्या। सो वेदर यू गो इन एनी इंडस्ट्री, MIDC में जाओ आप IT प्रोफेशनल अगर हो तो IT में जाओ, एडमिन में जाओ, HR में जाओ, किसी भी डोमेन में जाओ, एक्सेल यूज होता है एंड दिस इज वेरी बेसिक थिंग नाउ इट इज। ठीक है, सो यूज्ड यूनिवर्सली। और क्या रहेगा? आपका जो डेटा जो भी काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। आपको समय आपको सिर्फ काम करना है, वो सेव होता रहेगा, ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। वो तो एक फीचर है एक्सेल का। वो फीचर है वो, लेकिन आपके पास वहाँ पे शो करेगा कि यू वांट टू टेक दिस और नॉट। नहीं, ये तो सी दिस इज समथिंग अ फीचर ऑफ एक्सेल। ठीक है, वो तो एक्सेल का एक फीचर है ऑटो सेव वाला। फीचर है कि आपको सेव नहीं करना, आप काम करना। हाँ नहीं, वो तो करेक्ट, वो एक फीचर एक्सेल में है। ठीक है, और क्या है? एक्सेल सपोर्ट्स फॉर एंड्रॉइड, मैक, विंडोज, किस पे भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सपोर्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सपोर्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विंडोज, मैक, ठीक है, एंड्रॉइड, किस पे भी ये काम करता है। और क्या है? करेक्ट। इसमें एक चीज है कि एक्सेल में क्या है पता है? एक्सेल में एक इनबिल्ट लैंग्वेज है एक्सेल में, इनबिल्ट लैंग्वेज है विच इज नोन एज VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इससे होता क्या है पता है? मोस्टली ऑटोमेशंस में है ना, अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, फिर किसी और टीम को हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को, कि जो वो एप्लीकेशन पे काम करे, है ना। लेकिन अगर आप एक्सेल सीखते हो और VBA का लैंग्वेज सीखते हो, सो विद इन एक्सेल विच इज ऑफिस 365 का सूट है, उसके अंदर क्या होगा? आप ऑटोमेशन भी कर पाओगे। तो एक तीर में दो निशान, है ना। तो एक्सेल भी यूज कर रहे हो, प्लस अगर आप ऑटोमेशन करना है, एक्सेल रिलेटेड ऑटोमेशन, वो आप फ्री में कर पाओगे यूजिंग दिस VBA एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपनीज को अलग से कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल से ही काम हो जाएगा। तो जो भी ऑटोमेशन के काम होते हैं वो एक्सेल पे होते हैं, वो होते किससे है? VBA लैंग्वेज से। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। अभी हमने ये देखा व्हाई टू लर्न एक्सेल, इसके अंदर हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। अब क्या देखना है? व्हाट नेक्स्ट? हम लोग देखते हैं कि अपने कोर्स में कंटेंट क्या क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द कोर्स कंटेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? आई विल मेंशन हियर एज कोर्स कंटेंट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा? व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न? फॉर्मूलाज, ओके। तो वेरियस मैं फंक्शन मेंशन कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, ओके। सो अब मुझे बताओ, ये सम कर रहा हूं मैं 2 + 2, तो ये फॉर्मूला है या फंक्शन है? ये फॉर्मूला है या फंक्शन है? व्हाट डू यू से? फॉर्मूला है। आप क्या बोलते हो? फंक्शन है। फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? अच्छा, ये फंक्शन है तो फंक्शन क्यों है, फॉर्मूला क्यों नहीं है? Okay, so let me tell you what is function and what is formula. Now I am typing again equal to sign 2 + 2,
I am getting the same result. I am getting the same result. So this is formula. I have created this formula. But in this case, I have used function which is created by Excel. जो Microsoft Excel ने जो function बना के रखे, I have used that to derive the answer. So आपको difference समझ में आया function और formula में? तो जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस बना के रखे हैं, अगर उसको हम यूज करके आंसर डिराइव कर रहे हैं, सो दैट इज फंक्शन. लेकिन यही आंसर मैंने डिराइव किया 2 + 2 4. सो दिस इज फॉर्मूला. आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर्मूला, है ना. तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मूला और फंक्शन में. MIS के इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन. तो यू शुड हैव दिस आंसर. ठीक है. तो अपने अपकमिंग क्लासेस में जब भी हम लोग इस तरीके के फंक्शन यूज करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन. और अभी आप यहाँ से अगर ऑफिस जाओगे और ऑफिस में अगर आप किसी डिस्कशन में हो और आपके मैनेजर ने बोला अरे ये फॉर्मूला जो है ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा देख लो, या ये फॉर्मूला क्या है, सो करेक्ट हिम. ये मत सोचना अरे कुछ भी बोल रहा है, छोड़ दो. करेक्ट हिम, बॉस दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज फंक्शन, एंड टेल हिम द रीजन. ठीक है. क्या होगा इससे, आपका माइंड जो है ना एक बार इसको रिवाइज कर लेगा और ये आपको याद रहेगी आगे चीज. ठीक है. तो जो भी चीज आप सीख रहे हो ना उसको आगे उसको स्प्रेड करो. ठीक है. तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन. अच्छा, हम लोग वेरियस फंक्शन सीखने वाले. और क्या सीखने वाले हम लोग 2 पॉइंट्स ऑनलाइन से लेंगे एंड फिर 2 पॉइंट्स ऑफलाइन से लेंगे. ऑनलाइन में आप बताओ अभी कोर्स कंटेंट में अपने क्या रहेगा. anyone from online? अच्छा, आई थिंक ऑनलाइन वालों के पास कोर्स कंटेंट के लिए अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो हम लोग ऑफलाइन के ऊपर आते हैं. तो कोर्स कंटेंट में और क्या रहेगा, सिर्फ हम फंक्शन सीखेंगे. मेरा लाइफ इजी हो गया, मैं तो 1 महीने में सिखा के छोड़ दूंगा आप लोगों को. टूल्स, ओके, ठीक है. एक्सेल के ऊपर जो टूल्स है ये टूल्स सीखेंगे आप. ठीक है, टूल्स सीखेंगे. और क्या, 10 पेज का 1 पेज पे डेटा कैसे बनाना है. ओके, सो व्हाट वी कैन से, कंबाइन मल्टीपल डेटा और टू क्रिएट अ कॉम्पैक्ट डेटा. ठीक है, क्रिएट कॉम्पैक्ट डेटा. ठीक है. और ये तो अपने इसके अंदर डेटा से कैसे डील करना है, लॉजिकल बिल्डिंग और हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम कंसेप्ट. ये किसी के दिमाग में नहीं आया डेट एंड टाइम कंसेप्ट, क्योंकि अपने तो ऑफिसेस के अंदर इन एंड आउट डेट एंड टाइम को देखते हैं, है ना. मैनेजर्स देखते हैं ना डेट एंड टाइम को. टाइम शीट्स वगैरह करते होगे आप, कुछ तो टाइम रिकॉर्डिंग करते होगे आपके एक्टिविटीज के लिए. आप मॉर्निंग में आए, कुछ स्टार्ट किया आपने, कहीं पे होता है टाइम रिकॉर्ड, कहीं पे बोलते हैं चलो 9 घंटा है प्रेजेंट. मोस्टली आईटीज में ऐसा नहीं होता है टाइम रिकॉर्डिंग, बट ऑपरेशंस में मोस्टली क्या होता है, जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, क्योंकि उनको मिनट का हिसाब देना होता है ना क्लाइंट को बिलिंग के लिए, तो क्या करते हैं, अच्छा तो आ गया टाइम स्टैम्प, वॉशरूम टाइम स्टैम्प, ब्रेक टाइम स्टैम्प, कौन सा एक्टिविटी किया टाइम स्टैम्प. हर एक इसके लिए टाइम स्टैम्प करना पड़ता है. क्यों, ताकि पता चले कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कितने टाइम में कितना काम किया है. इसके लिए टाइम स्टैम्प की जरूरत है ना. इसके लिए डेट एंड टाइम कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे. और क्या सीखेंगे, सो वी आर गोइंग टू लर्न स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस. स्लाइसर्स सीखेंगे, टाइमलाइन सीखेंगे, देन मल्टीपल चार्ट्स, डैशबोर्ड, करेक्ट, डैशबोर्ड देखेंगे हम. देन वी आर गोइंग टू लर्न दिस पार्ट. ये किसने बताया था, मैक्रोज वाला, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आई विल टेल यू इन डिटेल. मैक्रोज का किसने जिक्र किया था ऑनलाइन में से, आरती. ओके, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न मैक्रोज, बट वी आर गोइंग टू लर्न रिकॉर्डिंग मैक्रोज.
हम लोग क्या करने वाले हैं, recording macros, which is basic macros, because we are here to learn practical applications of advanced Excel. अगर आपको core macros सीखना है, so you have to join VBA class. और VBA के कितने अपने पास क्लासेस है? 2 क्लासेस है. One is VBA Foundation and the other one is Advanced VBA. ठीक है. तो जो core macros है वो कहाँ पे सीखेंगे? VBA में. एडवांस एक्सेल में क्या सीखेंगे? रिकॉर्डिंग मैक्रोस. ओके, एनी अदर थिंग? सो वी आर गोइंग टू सी डेटा टाइप्स और ऐसे बहुत सारी चीजें. ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स, हाउ टू क्रिएट इनसाइट्स आउट ऑफ चार्ट्स. तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स मैंने मेंशन कर दिया. और आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डेटा हैंडलिंग हमने डाल दिया. डेटा हैंडलिंग, yes, आपके भी. How to present data, that is something again in it will come in dashboard. It will come in dashboard. So to show or to visualize data in dashboard in a simple way, in single pager, we will see that in dashboard. ठीक है, तो अपना ये हो गया अपना कोर्स कंटेंट वाला. अच्छा, लेट मी आस्क यू वन थिंग. आप में से कितने लोगों को एक्सेल के वर्जन्स के बारे में पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेल वर्जन्स? एक्सेल वर्जन्स, एक्सेल के कौन से वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में? देखो, पहले जो ओल्ड वर्जन्स होते थे वो क्या होते थे? ऑफिस 365 2003 होता था, है ना? 2007, 2010, है ना? ये क्या था? ये ओल्ड वर्जन्स में आता था. ओके, फिर न्यू वर्जन्स आने के स्टार्ट हो गए, तो उसमें क्या आया? 2019 2016 16, then 19, and then 2021. Office 365. Good. Office 365 is again a new thing. This is not a part of any Excel version here. आपको कभी ऐसा दिखता है ऑफिस 365 2021 ऐसे कुछ दिखता है? नहीं. ये एक सेपरेट चीज है. ऑफिस 365 क्या बताता है ऊपर? ऑफिस 365. जब आप फाइल ओपन करोगे, अकाउंट्स पे जाके देखोगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ऑफिस 365 दिखेगा. तो अभी आप जाके जब चेक करोगे ना, तो आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है एक बार चेक करना. तो किसी के यहाँ पे 21 दिखेगा, किसी के पे 16 दिखेगा, किसी के यहाँ पे 19 दिखेगा. बट recommended is for our class purpose, recommended is Office 365. अगर आपका पुराना वर्जन रहेगा, सीख सकते हो आप अपना पूरा कोर्स कंटेंट जो भी है सीख सकते हो. बट इन सम केसेस, इन सम एग्जांपल्स, इन सम फंक्शंस, you won't be able to work on those functions if you have old version of Excel. अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी वर्जन है, तो कोई फंक्शंस ऐसे हैं जो हम सीखने वाले हैं, आप वो सीख नहीं पाओगे, या आपके सिस्टम पे आप कर नहीं पाओगे. डेफिनेटली आप यहाँ पे देख के सीख पाओगे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप आपके सिस्टम में अगर ये वाले वर्जन है. ठीक है, अब ये ओल्ड, न्यू और ऑफिस 365 ये वर्जन का क्या चक्कर है? व्हाट डू यू थिंक? ये क्या है? ये ऑफिस के ये जो वर्जन्स है और ये ऑफिस 365, ये क्या हुआ? अपडेटेड फीचर्स आ गए. तो जैसे जैसे नया नया बनते गए, अपडेटेड फीचर्स आते गए. तो 2021 तो अपडेटेड वर्जन है, फिर ऑफिस 365 क्यों? नहीं, ये रीजन नहीं है इसका, ये रीजन नहीं है. तो ये जो आते थे ना, ये एक्सेल, ये कैसे आते थे पता है? ये आते थे पैकेज इंस्टॉलेशन. आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है कि आपको एक्सेल या आपको ऑफिस का एक इंस्टॉलेशन चाहिए, तो आप सीडी लाके उसको इंस्टॉल करते थे? पहले ऐसा होता था ना, सीडी लेकर आओ, है ना, या तो आप एक सीडी खरीदो, या तो ऑनलाइन अगर परचेस आप सीडी कर रहे हो तो उसका एक प्रोडक्ट की मिलता है, फिर आप उसको इंस्टॉल करो, प्रोडक्ट की डालो, उसके बाद आप यूज कर पाओगे. तो ऐसा इंडिविजुअल एप्लीकेशन ओपन होगा, बराबर. सो पहले के जो ये वर्जन होते थे ना, ये पैकेज इंस्टॉलेशन वर्जन्स में आते थे. बट ऑफिस 365 इज समथिंग ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल.
अब मैं बोलूंगा अगर ऑनलाइन वर्जन, तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पे तो ये एक्सेल ओपन किया है, ये ऑनलाइन कहाँ से हुआ, है ना, ये भी तो एक एक्सेल जैसे ही दिख रहा है. इवन दो दिस इज लुकिंग लाइक एक्सेल, आई हैव इंस्टॉल्ड दिस एक्सेल फ्रॉम ऑफिस 365. अब इसमें होता क्या है पता है, दिस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल. इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल. ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है. अब पैकेज इंस्टॉलेशन और सब्सक्रिप्शन मॉडल में डिफरेंस आप समझ गए होंगे. इसके लिए हम लोगों को सीडी लाना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था और उसके बाद हम यूज कर पाते थे. लेकिन इसमें आपको जितना मिला उतना मिला, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, वो टाइप वाला सीन था. लेकिन इसमें क्या है पता है, ऑफिस 365 में इफ यू डू अ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस, इफ यू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफिस 365, आज एक्सेल ने क्या लॉन्च किया वो चीज आपको दिखाई देगी. जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ पे मिलेंगे. वो यहाँ पे नहीं मिलते थे. एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला. लेकिन ऑफिस 365 में आपको क्या मिलेगा, मोस्ट अपडेटेड वर्जन्स जो भी उसके आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये पैकेज इंस्टॉलेशन और सब्सक्रिप्शन मॉडल का डिफरेंस है. ठीक है, तो रिकमेंडेड क्या है, ऑफिस 365. इफ यू आर यूजिंग पर्सनल लैपटॉप्स फॉर योर पर्सनल यूज ऑल्सो, दिस इज रिकमेंडेड. अभी आप बोलोगे इसका सब्सक्रिप्शन तो इतना महंगा है, 6,000 7,000 का इसका सब्सक्रिप्शन है, तो इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा. सो डोंट वरी. ठीक है, आपको ऑफिस 365 का जो वर्जन है ना, वी हैव सम टाइप्स विद फ्यू एजेंसीज जो आपको ये कम दाम में देंगे. ठीक है, ये आपको कम दाम में देंगे और वो लाइफ टाइम एक्सेस देंगे. ऐसा नहीं होगा कि 1 साल का दिया 7,000 भर लो, 1 साल हो गया कि वापस 7,000 भर लो, ऐसे नहीं होगा. लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा विथ वेरी वेरी मिनिमल चार्जेस. अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऑफिस जा रहे हो और महीने भर में आप जितना चाय पे खर्चा कर रहे हो उतना भी खर्चा नहीं होगा, तो आप अभी आप अज्यूम कर लो कि उसका क्या चार्जेस होगा. ठीक है, सो दिस इज रिकमेंडेड. ओके, तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको. ठीक है, अभी क्या करते हैं, और क्या बचा है अपना इसमें, हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया, कंटेंट देख लिया. अच्छा, अभी हम लोग आते हैं क्लास के डिटेल्स पे. ओके, सो वी विल कम ऑन टू क्लास डिटेल्स. अब अपना ये क्लास कैसे रहने वाला है, और क्लास विल बी इन बोथ मोड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. जैसे अभी अपना डेमो चल रहा है ना, यहाँ पे देखो कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्ट किए हैं और आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन में बैठे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन बोथ मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है या कोर्स कंटेंट में इसके पहले वाले स्लाइड में कुछ क्वेश्चन था नहीं. अपना ये बैच कोड क्या है, AAE005. दिस वुड बी आवर बैच कोड. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. आज से हमने ये स्टार्ट कर दिया. टुडे वाज द फर्स्ट डे विच इज डेमो. नेक्स्ट वीक से हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और ये इसका टाइमिंग क्या होने वाला है, एवरी सैटरडे 3 to 6. आज जो टाइमिंग पे आप आए हो ये टाइमिंग में, और इसका अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन क्या होने वाला है, 4 months. नाउ व्हाई आई हैव मेंशन्ड अप्रोक्सीमेटली 4 months. अप्रोक्सीमेटली वर्ड क्यों यूज किया है, व्हाट डू यू थिंक. प्लस माइनस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, प्लस हो सकता है. मिनिमम 4 months एंड प्लस हो सकता है. अब प्लस किस रीजन से प्लस हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक. प्लस क्यों हो सकता है, कभी क्लास नहीं हुआ, फेस्टिवल है, वीकेंड पे आ गया फेस्टिवल. ऐसा तो नॉर्मली ऑफिस में हम रहेंगे तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार वीकेंड पे फेस्टिवल नहीं आना चाहिए, है ना, सोचते ना हम, क्योंकि वीकेंड पे फेस्टिवल आए तो क्या छुट्टी वेस्ट हो जाता है. वैसे हम लोग क्या सोचेंगे, वीकेंड पे फेस्टिवल नहीं आना चाहिए. क्यों, क्योंकि अपना क्लास मिस हो जाएगा. सेम फीलिंग हम यहाँ पे भी रखेंगे. ठीक है, तो ये एक्सटेंड होने के रीजंस क्या होते हैं, आइदर हॉलीडेज और हम लोग जो एग्जांपल्स लेते हैं, अभी लेट्स से अपने पास 200+ एग्जांपल्स हमको कवर करने हैं, 200 से ज्यादा एग्जांपल आपको कवर करने हैं. तो मोटा मोटा एक 3 घंटे के सेशन में एवरेज 15 एग्जांपल्स हमको कवर करनी चाहिए. एवरेज 15 एग्जांपल्स हमको कवर करने चाहिए. लेकिन मान लो हमने आज 3 ही एग्जांपल कवर किए, तो आप बोलोगे 3 एग्जांपल ही क्यों किए, 15 करो, है ना, 15 कर दो, खत्म कर दो जो भी है. लेकिन हम लोग ऐसे पैटर्न में नहीं सिखाते.
we don't want to complete the syllabus. We don't want to complete the syllabus. We want to give you the download in a proper way. हम लोगों को क्या है, आपको डाउनलोड देना है, जो आपको हम सिखा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए. तो होने क्या वाला है, अब यहाँ पे देखो, अपने जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कुछ लोग क्या है इसमें ऑलरेडी एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बिगिनर लेवल पे है, बहुत बिगिनर लेवल पे. तो हमको सबको क्या लाना है, सेम पेज पे लाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर सब लोग फीस भर रहे हैं तो आप लोग ये मानते हो कि नहीं कि सब लोग सेम पेज पे आना चाहिए, या जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम कर रहा है वो ये सोच रख रहा है कि अरे उसको नहीं आता है, उसकी वजह से मेरा टाइम क्यों खोटी कर दूं मैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम पेज पे लाने की कोशिश करेंगे. तो अपना पैटर्न कैसे होता है, वी टेक वन एग्जाम्पल हियर, ओके, और उसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने बोलते हैं. जैसे आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, आई विल गेट अ कंफर्मेशन, सबका हुआ, हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अगर आप बोलोगे नहीं बढ़ना है तो मैं रेस्ट करूंगा. अगर आप बोलते चलो ठीक है हो गया, आगे बढ़ना है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे. सो आफ्टर टेकिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, आई विल गिव यू टाइम टू डू इट प्रैक्टिकली हियर इटसेल्फ. व्हाई? जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बोला था, अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे अरे बाद में देखेंगे. वैसे अगर मैं आपको अभी टाइम नहीं दूं तो आप क्या बोलोगे, घर पे जाके मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, बट वो टाइम नहीं मिलेगा. फिर मैं नेक्स्ट वीक आपको पूछूंगा, अच्छा तो फ्रेंड्स बताओ प्रैक्टिस किया था, टाइम ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस का आवर्स 4 घंटे से बढ़ गया, 8 घंटे का शिफ्ट था, 12 घंटे शिफ्ट किया मैंने, तो टाइम ही नहीं मिला. वीकेंड में मैं करने वाला था, बट बीवी ने बोला डीमार्ट जाना है, और डीमार्ट में गए तो डीमार्ट में हम 3 घंटे 4 घंटे डीमार्ट में ही थे, तो उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला. मेरा फेस्टिवल था, मेरा फ्रेंड का शादी था, मेरा रिलेटिव का शादी था, एक्स वाई जेड, इतने सारे रीजन आ जाएंगे. इसके लिए व्हाट वी नो, ये रीजंस आ सकते हैं. इसीलिए प्रैक्टिस कहाँ करो, यहीं पे करो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके प्रैक्टिस नहीं करो. इसके बाद घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका फायदा होगा, आप बहुत अच्छे से और सीख पाओगे, है ना? मैं तो यहाँ पे टाइम दूंगा आपको, लेकिन घर पे जाके भी प्रैक्टिस करना है, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन इज विद यू गाइज. ठीक है, तो ये क्लियर है कि अपना अप्रोक्सीमेट क्यू यूज किया हमने. 4 मंथ से ज्यादा हो सकता है, कभी कभी 8 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. अगर कोई स्लो पेस है लर्नर, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, 5 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, टाइम लगने दो. हमको कोर्स कंप्लीशन का ये नहीं है, कोर्स कंप्लीशन हमको करना चाहिए. लेकिन मोस्टली होता है क्या, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कब खत्म होने वाला है. अरे वेट, और एग्जाम्पल सीखने अपने को, और एग्जाम्पल्स अपने लेने. मुझे घाई नहीं, आपको क्यों है? मुझे घाई नहीं, घाई किसको होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए. मैं कब खत्म कर दूं, मेरा इसका रेंट जा रहा है, मुझे दूसरे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, मैं कब खत्म करूं, कब दूसरा स्टार्ट करूं. आइडियली ये होना चाहिए ना. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मुझे घाई नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका सीखना जरूरी है. इफ यू आर एनरोलिंग, आप 100% यहाँ से जाओ तो 100% सीख के जाओ. अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे आए हैं? आप 1 2 3 4 ऑनलाइन में भी कुछ लोग हैं, देखो शुभम. तो व्हाई डू यू थिंक आप आपके फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से क्यों आए हैं? क्योंकि आपको फीडबैक अच्छा मिला है. एग्जैक्टली. और हम लोगों का यही मोटो है कि हमको आपको अच्छा सिखाना है, हमको आके यहाँ पे सिलेबस खत्म करके नहीं जाना है. एम आई क्लियर? तो ये पोर्शन में कुछ डाउट है किसी को? यस, सेम टाइम 3 to 6. तो देखो, अपना ये जो डेमो चल रहा है ना, दिस डेमो इज फॉर वीकेंड बैचेस. और जो मैं यहाँ पे टाइम मेंशन किया है ना मैंने, यही टाइम रहेगा. एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस बैच, ठीक है, ओनली ऑन वीकेंड, सैटरडे 3 to 6. ओके, ठीक है. तो ये क्या है आगे,
few key points. Learn 200 and plus more examples, 200 plus practical examples. तो अपने जैसे मैंने बताया, we are going to cover more than 200 examples, more than 200 plus examples. Interactive session, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बात करो बात करो बात करो, लेकिन आप लोग हो कि कम बात कर रहे हो. जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा. जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे नई नई चीज पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी. फिर तो मेरे लिए क्या होगा, ये एग्जाम्पल बता दो, 5 मिनट मौन व्रत रखो और आपको पूछ लो हो गया क्या? हो गया, हो गया, चलो आगे चलो, है ना. मजा नहीं आएगा जब तक इंटरेक्टिव सेशन नहीं बनेगा, है ना. जब आप क्वेश्चंस पूछोगे उसके आंसर लोगे तो वो मजा आएगा हमको सीखने में. और ये इंटरेक्टिव सेशन रखने का रीजन क्या है पता है? अभी आपने मोस्टली ऐसे ऑनलाइन सेशंस देखे होंगे, ऑनलाइन सेशंस जहां पे आपको बोलने का मौका ही नहीं होता, म्यूट रहते हैं आप लोग, सभी लोग. आप सिर्फ कमेंट डाल सकते हो, वो भी आपका कमेंट रीड हो गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. ये करने का रीजन क्या है पता है? बहुत से लोग अपने में ऐसे है ना कि जिनको स्टेज फियर होता है, जिनको पूछने में डर लगता है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं ये पूछूंगा तो ये सिली क्वेश्चन तो नहीं हो जाएगा. बट डोंट थिंक इन सच वे. अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये एक्सेल रिलेटेड कि ये इसका क्या हो सकता है, या ये सेल में आपने एडिट कैसे किया, ये सेल में आपने चीजें टाइप कैसे की, वॉट एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेल, मैं आपको स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं पता है? नहीं तो आप पूछ लोगे कि वो क्या हुआ उसका, कुछ अदर देन एक्सेल पूछ लोगे, यहां से उधर कोथरूड को जाना है, बस कौन सा है, तो वो नहीं चलेगा. मतलब एक्सेल से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो. तो ये मत सोचना कि नहीं क्या, अरे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सिली तो नहीं हो जाएगा. तो एनी क्वेश्चन एनी टाइम यू कैन स्टॉप मी. अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लेट मी फिनिश दैट एंड देन आस्क क्वेश्चन. बट आपके दिल में दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लो और उसको उसी क्लास में सॉल्व करके लो. ठीक है. तो इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है. अब यहाँ पे क्या है, वी हैव टेलीग्राम ग्रुप्स. अभी अपने पास टेलीग्राम के अलग अलग ग्रुप्स है. जैसे एक्सेल का अलग ग्रुप है, वीबीए का है, पावर बीआई का है, पाइथन का है, पावर क्वेरी, पावर पिवट का है, पावर ऑटोमेट का है. जितने कोर्सेज अपने पास है सबके ग्रुप्स है अपने पास. अदर देन दिस वी हैव जॉब ग्रुप एज वेल. तो अपने जॉब ग्रुप के अंदर क्या है, आप यहाँ पे एनरोल करोगे, यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, जो भी लेटेस्ट जॉब्स आते रहेंगे उसके ऊपर यू कैन गो एंड फाइंड आउट सम अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको लगता है कि आज ये अपॉर्चुनिटी आया है, ट्राई दिस, है ना. तो हो सकता है ये जॉब ग्रुप से आपको नया जॉब मिल जाए. आपका करियर में स्विच करने का प्लान है तो यहाँ पे एमआई से रिलेटेड कुछ जॉब आ गया वो. और अपनी जॉब ग्रुप्स में आपको बता दूं, बहुत से कंपनीज के एचआरस है, रिज्यूम राइटर्स है. ठीक है. तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है. जॉब्स ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है. ठीक है. वैसे ही जो क्वेरी ग्रुप है, अदर देन आवर एग्जाम्पल्स, जो भी आपको क्वेरीज है आप क्या कर सकते हो, आप उसको पूछ सकते हो. ठीक है. वो क्वेरी ग्रुप में. उसके बाद क्या है, लर्न न्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर बैच. जैसे मैंने बताया कि कुछ एग्जाम्पल्स नए आएंगे उसको हम ऐड करेंगे, जो पुराने एग्जाम्पल्स रहेंगे जिसका यूज नहीं है उसको हम निकाल देंगे, वो टाइप में. ठीक है. इसके बाद ये क्या है, लेटर ऑफ कंप्लीशन बाय AFCKS ऑन कोर्स कंप्लीशन. 90% attendance is mandatory. So if you enroll yourself, after completion of this course, you will get a letter of completion. But the condition is 90% attendance. ठीक है. 90% attendance आपका होना चाहिए. उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरिंग द टेस्ट. अब आप बोलोगे लेटर ऑफ कंप्लीशन और सर्टिफिकेट दोनों चीज क्या है. लेटर ऑफ कंप्लीशन इज नथिंग बट दैट यू हैव अटेंडेड दिस कोर्स. दैट्स इट. एक लेटर मिलेगा कि आपने ये कोर्स अटेंड किया था. सर्टिफिकेट क्या है, जब अपना क्लास खत्म हो जाएगा वी विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन लास्ट वर्किंग डे. लास्ट डे पे अपने एक टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देना है. अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया सो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. ठीक है. अगर आप क्लियर नहीं करते हो, अगर आप फॉर सम रीजन क्लियर नहीं करते हो एंड यू थिंक कि मैं एक और अटेम्प्ट करूंगा तो क्लियर कर लूंगा, ठीक है, सो यू विल गेट वन अटेम्प्ट बट दैट इज चार्जेबल. 1000 rupees you have to pay for that retest. ठीक है. Am I clear on these points? Am I clear on these points? Okay. Now जब हम लोग अपना क्लास एनरोलमेंट हो जाएगा ना तो अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा. ठीक है. सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट.
तो अपना जो है ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, जैसे एनरोलमेंट होगा अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा। जैसे हर एक बैच का क्या होता है, एक एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये AFC के 003, उसके बाद यहाँ पे देखो AFC के 004, तो ये ऐसे अपने ग्रुप बनेंगे और हम लोग जितने यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं जो एनरोल करेंगे वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। As soon as you enroll yourself, you will get added in that group. ठीक है, तो वो ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप, तो उसके अंदर ये सारी लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू दी फीस पार्ट, द फीस इज 8,000 रुपीज फॉर दिस कोर्स। कितना है? 8,000। अब यहाँ पे आप बोलोगे 8,000 तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना? 8,000 नहीं दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वी आर गिविंग 10% डिस्काउंट। वी आर गिविंग 10% डिस्काउंट for whom? Those who are making single payment before coming Saturday, 14th के पहले आप एनरोल कर रहे हो, 100% पेमेंट कर रहे हो, so you will get 10% डिस्काउंट। तो 800 रुपए आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। You have to pay 7,200 only, okay? But in case you want installment, you want to pay in installment, so you can pay in 2 installments। तो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होगा? 4,000 ईच, 2 इंस्टॉलमेंट 4,000 ईच। और आपको वो 4,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना है, एक 14th के पहले या 14th तक, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको कब पे करना है? एग्जैक्ट आफ्टर 1 मंथ। तो अभी मान लो आपने ये 14th को पेमेंट किया, नेक्स्ट 4,000 का इंस्टॉलमेंट कब आएगा? नेक्स्ट 14th को, यानी नवंबर के 14th को आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल, ये फीस रिफंड नहीं होगा। अभी क्या है, आपने ज्वाइन किया और पता चला कि सैटरडे को OT आ गया। अब आपके दिमाग में क्या है पता है? लर्निंग थोड़ा साइड में हो गया। अब क्योंकि OT है तो पैसे का सवाल है, तो कोई OT छोड़ना चाहेगा क्या? लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे, अगर OT मैंडेटरी नहीं है तो वो क्लास को प्रेफरेंस देते, OT को नहीं देते, क्योंकि OT से कितना कमा लोगे आप? उतने टाइम के लिए कमा दोगे, लेकिन ये लर्निंग करने के बाद जब आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन के जाओगे तो आप एक अच्छा खासा हाइक ले सकते हो। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज दिस 4 months और 4 to 6 months टाइम, डेडिकेटेड 4 to 6 months टाइम, सैटरडे 3 to 6, इसके बीच में कुछ भी काम नहीं रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये फीस के डिटेल्स क्लियर है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है मैंने, मेरा और रजा सर का और इमरान का। सो एनी टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स कंटेंट, रिलेटेड टू दिस कोर्स, यहाँ से जाने के बाद कुछ भी आपके दिमाग में आता है, सो यू कैन गिव मी अ कॉल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस, यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस। आप फोटो ले लो, फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर लो। तो ये रजा सर का मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखो, आप यहाँ पे ऑफलाइन आए हो ना, तो यहाँ पे लैपटॉप्स रखे हुए हैं, देखो। तो अगर आप बिना लैपटॉप के आते हो तो यहाँ पे लैपटॉप्स हैं, आप ये यूज कर सकते हो। इफ यू आर कमिंग विथ योर पर्सनल लैपटॉप, यू कैन यूज योर पर्सनल लैपटॉप, नो प्रॉब्लम। क्या नहीं होगा? डेटा मतलब डेटा नहीं है प्रैक्टिस के लिए, डेटा है, हाँ, इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, आपका ऑफिस लैपटॉप है और आप वो पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं कर सकते हो, डोंट वरी, आप ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हो क्या? मतलब इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो ना? इंटरनेट भी कनेक्ट नहीं कर सकते? ओके, ठीक है, तो फिर आप आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे ले लो, पर्सनल ईमेल आईडी से आप ऑफिस के ईमेल आईडी पे भेजो। यू कैन डू दिस एज वेल। सी, जो भी रहेगा ना, हम लोग डेटा जो है ना यहाँ पे बनाने वाले हैं, बना बनाया डेटा नहीं मिलने वाला। हाँ, बना बनाया डेटा पहले कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मिलेगा। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स के लिए बना बनाया डेटा मिलेगा, उसके बाद जो भी है इंडिपेंडेंटली हम लोग डेटा बनाने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अच्छा, ये जो देखो इंस्टॉलमेंट का मैंने बता दिया आपको, सिंगल पेमेंट का मैंने बता दिया। दिस इज द पेमेंट मेथड
गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो. यू कैन यूज दिस NEFT IMPS ऑल्सो. और यहाँ पे जो ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया है ना, ये वाला, ये क्या है? कार्ड पेमेंट है. इफ यू आर पेइंग इट थ्रू कार्ड, तो इसका जो गेटवे चार्जेस रहेगा ना, वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा. वो बैंक के पास जाता है. जो भी 2.5%, 3%, 4%, जो भी डिपेंडिंग ऑन बैंक जो रहेगा, वो एक्स्ट्रा लगेगा. सो you can take your decision how to make the payment, but then easiest way to make a payment is Google Pay. ठीक है. अच्छा, अब आपको करना क्या है? what is the process to enroll? आपको क्या करना है? ये Google Pay नंबर पे पेमेंट करना है और आपको लेना है स्क्रीनशॉट. कैसे लेना है? विथ रेफरेंस. जो रेफरेंस नंबर आता है ना पेमेंट करने के बाद, वो रेफरेंस नंबर के साथ आपको क्या करना है? रजा सर को और मुझे हमको स्क्रीनशॉट भेजना है. जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपका एनरोलमेंट हम लोग कर देंगे एंड यू विल गेट अ मैसेज ऑफ एनरोलमेंट. ठीक है. आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड करेंगे और आपको सिस्टम में भी ऐड करेंगे हम लोग. ठीक है. आपको करना क्या है? सिर्फ इसके ऊपर पेमेंट करना है, वेदर वन टाइम और इन इंस्टॉलमेंट. यू हैव टू डिसाइड दैट एंड यू हैव टू सेंड द स्क्रीनशॉट. ये क्लियर है? अभी आपको ये ओके मैंने ये बताया. एक चीज इसमें ये है, इफ यू आर गोइंग टू क्लेम दिस अमाउंट इन योर कंपनी, अगर आपको क्या करना है? क्लेम करना है कंपनी में कि ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्लेम करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे. अगर ये सिचुएशन है, इन दैट केस यू हैव टू पे फुल 8,000 फीस प्लस GST ऑफ 18%. ये 10% डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए देते हैं. अगर आप रियम्बर्स कर रहे हो तो पैसा कहां से आ रहा है? कंपनी से आ रहा है. कंपनी को क्यों दे भाई? कंपनी से अगर पैसा आ रहा है, कंपनी को डिस्काउंट क्यों दे? आप एज ए इंडिविजुअल, हम लोग आपको दे देंगे डिस्काउंट 10%, लेकिन अगर इफ यू आर क्लेमिंग इट और कंपनी से अगर आपको पैसा आ रहा है या कंपनी पैसा पे कर रहा है, इन दैट केस यू हैव टू पे 8,000 प्लस 18% ऑफ GST. ठीक है. तो अगर किसी को भी अगर चाहिए रहेगा कि हम कंपनी को रिएम्बर्स करने वाले हैं, प्लीज लेट मी नो इन एडवांस, क्योंकि आपको एक हमारे तरफ से बिल लगेगा. एक बिल लगेगा जिसके ऊपर टिन नंबर रहता है ना. उसका बिल आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो ही आप रिएम्बर्स कर पाओगे. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ केस है तो मुझे बता देना. ठीक है. तो ये क्लियर है अभी सभी को? एनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है अदर देन दिस? कंटेंट में इसका जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. जैसे 3.5 कोई बैंक, 4%, ऐसा वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है. डिस्काउंट मिलेगा आपको, 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपका पैसा कितना जाएगा? 7,200 प्लस जो ये गेटवे चार्जेस रहेगा 3%, 4%, 2.5%, जो भी वो ऊपर का रहेगा वो बैंक कट करके ले लेगा. ठीक है. एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? इंटरनेट बैंकिंग से अगर पे करते हैं तब भी हमें चार्ज पे करना होगा. तो इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप करोगे ये IMPS या NEFT, तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा. लेकिन मोस्ट प्रिफरेबल देखो, आजकल देखो जब से UPI आया है तो ये एकदम इजी वे होता है. गूगल पे कर दो एंड ये बेस्ट रहता है. बट इन सम केस यू नो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिसेंटली जॉब ज्वाइन किए हैं, उनको अभी फीस पे करने के लिए उनका सैलरी नहीं हुआ है या मेरा पैकेज कम है. ठीक है. इन दैट केस ऐसे भी बच्चे हैं जो कार्ड से पेमेंट करते हैं, भले थोड़ा ज़्यादा चले जाए, बट आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और वो ज्वाइन करते हैं और उसको फिर कार्ड को बाद में सैलरी आने के बाद पे कर देते हैं. लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते. तो ऐसे भी केसेस होते हैं. बट हमारा ये बोलना काम है, क्योंकि जब आप ये पेमेंट मोड यूज करोगे तो ये यहाँ पे गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. लास्ट कॉल, एनी क्वेश्चंस? तो हम लोग स्टॉप करें फिर यहाँ पे आज? यस. ओके, गुड क्वेश्चन. देखो अभी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो ये क्वेश्चन आने चाहिए थे सेशंस में. ओके,
अभी एक क्वेश्चन आया है ऑफलाइन से, अगर आपको इमरजेंसी कुछ आ गया, आपको जाना ही है ये सिचुएशन में, सो वन थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम मोबाइल, ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो आप। मान लो आप ऑफिस गए हो, आप काम कर रहे हो, साइड में मोबाइल रख दो, हेडफोन लगा दो और ट्राई टू कनेक्ट इट ऑनलाइन थ्रू मोबाइल, अगर पॉसिबल है तो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपना पैटर्न क्या होता है, वॉट एवर एग्जाम्पल्स वी टेक इन अ पर्टिकुलर डे, जब आप नेक्स्ट वीक में आओगे ना, तो वी विल नॉट स्टार्ट विथ न्यू एग्जाम्पल्स, वी विल टेक द रिविजन फर्स्ट फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन लास्ट वीक। तो मान लो आज 10 एग्जाम्पल किए, नेक्स्ट वीक में पहले 10 एग्जाम्पल का रिवीजन होगा, उसके बाद नया एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो अगर इनकेस अगर आपका छुट्टी होता है, रेयर केस अगर आप पकड़ लो छुट्टी करते हो, तो आप वो नेक्स्ट वीक के रिवीजन में आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगेन रिवीजन क्या होता है, रिवीजन का मतलब सब लोगों को पता होगा, रिवीजन का मतलब प्रॉपर डिटेल में नहीं जाएंगे आप, रिवीजन इज जस्ट टू गो थ्रू द प्रीवियस वीक्स एग्जाम्पल्स। तो रिवीजन जो होगा वो कैसे होगा, क्विक होगा। इन दैट केस यू हैव टू ग्रास्प इट एंड डू प्रैक्टिस एट होम। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं जो मैंने बताना रह गया। अब जो भी ये नोट्स होते हैं ना हमारे, हम लोग क्या करते हैं, इसको अपलोड करते हैं, इसको हम अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं। यू विल गेट लाइफ टाइम एक्सेस टू दैट नोट्स। आपको करना क्या है, एफसीकेएस टेक्नोलॉजीज के वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, जैसे आपका एनरोल हो जाएगा आप उसके ऊपर लॉगिन कर पाओगे। जैसे आपने लॉगिन किया, जो भी क्लास में आपने सीखेंगे, आई विल अपलोड दोज नोट्स इन ऑन आवर पोर्टल। वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो नोट्स और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। और ये जो मैंने बताया था आपको 90% अटेंडेंस वाला, अगर मान लो कंसेक्यूटिवली 3 वीक्स अगर आप एब्सेंट हो, तो आपका क्या होता है, नोट्स का जो एक्सेस है ये क्या होता है, इसको डिसेबल कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है, वो सिस्टम, उसको सिस्टम को बना ही वैसा है। बंदा 3 बार अगर नहीं आ रहा है तो सिस्टम को लगता है बंदा छोड़ के चले गया। तो 3 बार अगर आप एब्सेंट हो कंटिन्यूएशन में, आपका नोट्स का एक्सेस चला जाएगा। आप आ सकते हो 4th वीक में, 4th वीक में आप आ सकते हो, उसके बाद पूरे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपका जो नोट्स का एक्सेस है ना वो चला जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? 90% attendance, this one, uploading notes on portal, how can you download, हम लोग वो डाउनलोड कैसे करना है वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस नाउ? यस। क्लास मतलब ऑफलाइन ज्वाइन किया तो ऑफलाइन ही रहेगा या ऑफलाइन ऑनलाइन एज? ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो और बाद में ऑनलाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या, या आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो और फिर आप बाद में ऑफलाइन आना चाहते हो, आ सकते हो क्या? ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। ओनली योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। आप प्रेजेंट ही हो, आप सीख रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर यू कमिंग ऑफलाइन और आर यू कमिंग ऑनलाइन। ठीक है, आप सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी कनेक्ट करो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन आके करो। अगर आपने ऑफलाइन किया, फिर 2 दिन आपका मन नहीं बन रहा है, बारिश आ रहा है, धूप बहुत है, ठीक है, आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन करो। घर में अगर मैं क्लास अटेंड करूंगा, बच्चे परेशान कर रहे हैं, अगर बच्चे परेशान नहीं कर रहे, बीवी परेशान कर रही है, ठीक है, और मुझे क्लासरूम जाके करना है, अब क्लासरूम में आके करो। एनी रीजन, मैं मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू रीजन, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। लेकिन आप ऑनलाइन में अगर ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन आके करना है, ऑफलाइन कर सकते हो, या ऑफलाइन में आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब इनिशियल कुछ डेज ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहे हो, बाद में आपको ऑनलाइन करना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। एनी विच वेज यू कैन डू इट। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चंस? यस, अपने पास एक्सेल जो है ये बिगिनर लेवल क्लास है, मतलब अपने पास ये पहला क्लास है एडवांस एक्सेल वाला। इसके बाद अपने पास VBA लेवल 1 लेवल 2 ऐसे 2 VBA के लेवल से, जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेशन जो होते हैं एक्सेल बेस्ड वो सिखाते हैं। उसके बाद अपने पास पावर BI है, पावर क्वेरी, पावर पिवट है, पावर ऑटोमेट है, पावर एप्स है, पावर प्लेटफॉर्म की जितनी भी कोर्सेज है सारे हैं अपने पास। पाइथन है जो डेटा साइंटिस्ट के लिए लगता है, SQL है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अपने पास कोर्सेज है. So, yes, we have PowerPoint presentation courses. सर उसका शेड्यूल नहीं पता है. नहीं देखो, अपना ये जो डेमो है ना, this is only for advanced Excel, practical applications of advanced Excel. अगर आपको अदर कोर्सेज के बारे में अगर जानना है तो आप क्या करो, ये इमरान का जो नंबर है, आपने स्क्रीनशॉट या फोटो लिया होगा, आप इमरान को कॉल करो एंड ही विल गिव यू फुल डिटेल्स ऑफ अदर कोर्सेज. ठीक है, जो भी उसके कोर्सेज की डिटेल्स रहेंगे आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे. और अगर आपको वो डिटेल्स देखने हैं, इमरान को अगर कॉल नहीं करना और वो डिटेल्स देखने हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू AFCKS पोर्टल. आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो कोर्सेज का एक ऑप्शन है. यू कैन गो एंड यू कैन चेक दिस कोर्सेज. तो ये जैसे मैंने बताया, एडवांस एक्सेल, देन VBA लेवल 1, फिर लेवल 2 है अपने पास, फिर ये क्या है, डेवलपिंग मोबाइल टैबलेट ऐप, वेब एप्स. ठीक है, जो पावर एप्स के थ्रू बनता है. पावर BI है, फिर ये क्या है, पावर क्वेरी, पावर पिवट है, पावर ऑटोमेट है, ऑटोमेटिक गूगल शीट्स है, फिर SQL है, पाइथन है, इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. तो ये सारे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है. और इसका स्केड्यूल आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ये स्केड्यूल में आप जाओगे तो यहाँ पे व्यू स्केड्यूल में मिलेगा. या तो अगर ये स्केड्यूल अपडेटेड नहीं है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट Imran for this. Okay? Okay. Any other questions? तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें. सर और एक क्वेश्चन है. हाँ पूछिए. ऑफिस का अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है और अपने क्वेरी से या फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता है, तो अपन लाइव सपोर्ट मिल सकता है क्या? तो देखो, वो जो सपोर्ट की बात आप कर रहे हो ना, तो ये जो अपने टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स है ना, क्वेरी के ग्रुप्स, आप वो क्वेरी यहाँ पे ये टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हो. अगर आपका ऑफिस रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आप ऑफिस रिलेटेड कुछ डेटा पे काम कर रहे हो और आपका क्वेरी है, तो आप ये जो टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा, आप इस पे पोस्ट करो. तो ये ग्रुप में हमारे एक्सपर्ट्स है जो आंसर करते हैं. ठीक है, और अगर फिर भी इसका आंसर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स है उनके पास अगर टाइम नहीं है या वो क्वेरी को सॉल्व करने के लिए उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो रजा सर ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं एंड ही क्रिएट अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट. ओके. आपके डमी डेटा पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. और सेम लिंक शेयर कहाँ पे होगा, टेलीग्राम के ग्रुप पे. अब आप क्लिक करो, यूट्यूब का वीडियो ओपन करो और उसको किस तरीके से सॉल्व किया है देख लो. इज दिस क्लियर? यस सर, यस. थैंक यू सर. या वेलकम. ऑलराइट, तो फिर हम लोग अपना सेशन आज स्टॉप करें यहाँ पे, या किसी को कुछ क्वेश्चन है और? ऑलराइट, तो thank you so much for your valuable time and we will meet next week same time 3 to 6. Okay, have a nice weekend ahead. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Yeah, bye. Thanks to everyone.